Good morning everyone and welcome to the class. We are doing contemporary South Asia, and under this chapter we were discussing about Nepal, and we have discussed about it that Nepal became a democratic country in the third wave of democracy. That was after 1990. A new constitution was adopted and constitutional monarchy was established, and parliamentary form of government was also established in Nepal, and multi-party system was adopted. But still we find that the monarch was very powerful in Nepal. And one more element was there regarding the politics of Nepal, and that is Maoist. Maoists were very they have their influence in various parts of the country, and they believed in armed insurrection. They did not believe in the government. They run their parallel government. So these are the features of Maoist, which was also present in Pakistan, in Nepal. Or the group of Maoist, they were against the monarchy and the ruling elite. And we find there was a triangular conflict. On the one hand, the supporters of monarchy was there. On the other hand, the Maoists were there. And on the other hand, one more group was there, and that was the supporters of Democrats. So ये तीनों का एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी चलता था. एंड व्हाट वी फाइंड कि एक बहुत ही मेजर इंसिडेंट होता है नेपाल के पॉलिटिक्स में इन द ईयर 2002, जबकि किंग ज्ञानेंद्र जो हैं ही यूसर्व्स द पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, एंड इन दिस वे ही ट्राइड टू assert his power. He tried to establish a real monarchy again in the year 2002. But this effort of the king was not accepted by the people. The people started protesting against this move of the monarchy, and this protest of the people reached its culmination in the year 2006, when we see lakhs of people were protesting in the capital of Nepal, that is Kathmandu, against this monarchical rule in Nepal. They were demanding restoration of the parliament. They were demanding restoration of democracy in Nepal. And what we find ki this movement of people, this protest of people was getting support from all the corner of the country. Like Maoists were also supporting this democratic protest of the people, and there was 7-party alliance SPA, which was leading this movement of the people. Then social activists were also there who were supporting this protest of the people for restoration of democracy. And we see that the pressure upon the monarch was so high that the monarch has to accept the demand of the people. The king has to restore the House of Representatives. The House of Representatives, which has been dissolved by the king himself in April 2002, that House of Representatives was dissolved because there was pressure from the people. And this was the victory of democracy in Nepal. And we see Nepal then after this restoration of parliament in Nepal, the process of democratization started it got momentum. ये एकदम speed में आ गया, rapid हो गया. और after that there were people in Nepal who wanted कि अब आगे भी हमें क्या करना है. अब नेपाल के सामने फिर से एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की नीड जो थी वो खड़ी हो जाती है. एंड देन इट वाज डिसाइडेड कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, एंड दैट कंस्टिट्यूएंट असेंबली विल मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कंट्री.
because here what we find कि aspirations of the people was changed. अभी तक जो people they were believing in the institution of monarchy, but King Gyanendra, whatever was done by King Gyanendra, after that most majority of the people were against this institution of monarchy in Nepal. And what we find that there arose the need to draft a new constitution in Nepal. And though there were some section who thought that the monarchy should be there as a nominal head only, but there were most of the people were against this institution of monarchy. And then one new development also took place in the politics of Nepal when the Maoist group agreed to suspend armed struggle. Whatever armed struggle they were continuing, they agreed to suspend that. And they also wanted कि constitution new बननी चाहिए. They were also supporter of जो भी democratic process होता है उसको वो support कर रहे थे, but they were of the opinion that some radical programs of social and economic restructuring should be there in the constitution, because Maoist का क्या ideology होता है, जो माओ से दुंग थे उनकी ही आइडियोलॉजी है माओइस्ट की आइडियोलॉजी, और इसमें दे बिलीव इन इक्वालिटी, है ना. कम्युनिज्म की जो हम बात करते हैं, सोशलिज्म की जो बात करते हैं, ये वही है, लेकिन इसमें दे माओ से तुंग के जो आइडियोलॉजी उसको फॉलो करते हुए वो आर्म्ड स्ट्रगल पर ज़्यादा उनका फोकस होता है. बट नाउ दे हैव चेंज्ड देयर थिंकिंग. वो चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो भी सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस लाने हैं जिससे कि सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी को इस्टेब्लिश किया जा सके, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लाया जाए. तो एक तरह से जो नई कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो प्रोसेस था उसको माओइस्ट जो थे उनका भी सपोर्ट मिला हुआ था. देन जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज थे, SPA 7 पार्टी अलायंस बनी थी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत ही अपना एफर्ट में लगी हुई थी. बट हियर अगेन कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन द SPA एंड द माओइस्ट, क्योंकि माओइस्ट जिस तरह के चेंजेस चाहते थे, जो रेडिकल सोशल और इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी वो चाह रहे थे, उसको SPA जो थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे. और इसी बीच में व्हाट वी फाइंड कि इन 2008 में नेपाल जो है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है, और पूरी तरह से रिपब्लिक बन गया, यानी कि मोनार्की को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया. इन द ईयर 2008 नेपाल बिकम्स अ डेमोक्रेटिक monarchy was abolished. And then न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बनने का प्रोसेस था वो बहुत उसमें कई प्रॉब्लम्स आए. एक बार जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको वो नहीं एक्सेप्ट किया गया, देन अगेन बना, और 2015 में फाइनली जो नेपाल है उसने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया है. सो दिस 2015 a new constitution was adopted by Nepal. So these are the major events in the process of democratization of Nepal, and in this way we can say कि Nepal is now Nepal has become a democratic country. इसने डेमोक्रेसी की तरफ जो इसके एफर्ट्स थे वो फ्रूटफुल हुए हैं, और नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ट्रांजिट हो चुका है. and this is the victory of democracy in the whole region of South Asia, because we are seeing कि there are some countries like Pakistan में democracy stable नहीं रहा है, but here also we find कि 2008 से काफ़ी stability आ रही है. Then we have seen बांग्लादेश में 91 से इलेक्शंस जो है वो रेगुलर हो रहे हैं, मिलिट्री रूल कभी भी नहीं आया.
देन वी हैव सीन नेपाल में 2002 से लेकर के 2006 का जो टाइम था काफ़ी टर्बुलेंट टाइम था। देन वहाँ भी हम डेमोक्रेसी के रास्ते पर आगे चल चुके हैं, द पीपल ऑफ साउथ एशिया। तो इस तरह से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्ट्रांग हुआ है इन द होल रीजन ऑफ साउथ एशिया। एंड नाउ वी विल डिस्कस a new country, and that is Sri Lanka. Sri Lanka, you must be knowing the position of Sri Lanka, है ना, क्या कहाँ पर वो सिचुएटेड है। इंडिया के हमारे जो आइलैंड नेबर है वो, है ना, हमारे साउथ में वो पड़ता है। एंड बोथ द कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। 1947 में इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1948। And here in Sri Lanka we find a different kind of problem. That problem was internal problem, and of course नेपाल का भी problem internal था और पाकिस्तान के भी problem. We are discussing internal problems only, but here in Sri Lanka the nature of the problem was different. What we see कि challenge was not coming from military or monarchy, but actually Sri Lanka faced ethnic conflict. This ethnic conflict led to the demand for secession by one of the reasons. तो वहाँ पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होता है और ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी पूरी श्रीलंका के लिए सिविल वॉर वाली सिचुएशन आ जाती है और एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री जो है वो सेसेशन की मांग करता है, अपने आप को अलग करना चाहता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम थी वो यूनिक प्रॉब्लम है श्रीलंका की, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम हमको और कहीं भी विटनेस हम नहीं करते हैं। ओके, सो श्रीलंका में क्या होता है कि श्रीलंका जो है उसमें दो ग्रुप है लैंग्वेज के बेसिस पे। देयर आर टू ग्रुप्स, वन ग्रुप इज मेजॉरिटी ग्रुप, लिंग्विस्टिकली मेजॉरिटी ग्रुप है जो, and the another is a linguistically minority group. So we see ये जो linguistic majority श्रीलंका में है वो कौन सी ग्रुप है? That is सिंहलाज। सिंहलाज क्या है? सिंहलाज इज लैंग्वेज, ठीक है। एक लैंग्वेज के बेसिस पे जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी होती है उसको हम सिंहला कम्युनिटी कहते हैं। ओके, सिंहला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की कम्युनिटी, सिंहला कम्युनिटी was in majority in Sri Lanka, and on the other hand there were Tamils who were linguistic minority. This is Tamil community. Again what we find is कि ये जो तमिल कम्युनिटी है this was divided into two parts. One was Sri Lankan Tamil and the another was Indian Tamils. एंड मोर ओवर वी सी कि ये जो लैंग्वेज के बेसिस पे हमें डिवीज़न नज़र आ रहा है कि सिंहला कम्युनिटी है, देन तमिल कम्युनिटी है, ये इसमें रिलीजन वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस बिकॉज सिंहलाज जो थे दे वर मोस्टली बुद्धिस्ट, और जहाँ पर हम तमिल्स को देखते हैं तो वो हिंदूज एंड इस्लाम रिलीजन को मानने वाले थे। So what we find कि there was hostility between this Sinhala community and Tamil community because it was the opinion of Sinhala community that Sri Lanka
belongs to Sinhala community. And though we can say कि तमिल्स जो थे वो दो तरह के थे, श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल, बट एक्चुअली जो तमिल्स का जो ओरिजिनली थे, द ऑल तमिल्स बिलोंग टू इंडिया ओनली. तो एक ये फीलिंग थी कि जो तमिल्स जो कि इंडिया से आए हैं, कुछ जो थे वो बहुत पहले आ चुके थे और उनको हम श्रीलंकन तमिल कह रहे हैं, जो कि यहाँ सेटल हो चुके थे कई जनरेशन पीछे से. एंड कुछ जो थे इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस तमिल्स यूज टू माइग्रेट टू श्रीलंका फ्रॉम इंडिया. तो ये जो तमिल्स थे ओरिजिनली दे बिलोंग टू इंडिया. तो ये जो सिन्हला कम्युनिटी है उसका ये कहना था कि जो श्रीलंका है दैट श्रीलंका बिलोंग टू सिन्हला कम्युनिटी, और वो तमिल कम्युनिटी को बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती है. इसलिए जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, वॉट एवर रिसोर्सेज आर देयर in Sri Lanka, that should be only for the Sinhala community. The Tamils should not be given any kind of concession. उनके लिए हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट बिलोंग टू श्रीलंका. ठीक है, तो ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये जो व्यू पॉइंट है सिन्हलास का, दैट वाज very much the most important reason for the conflict which arose between these two communities, isn't it? ये तो वही बात हुई ना कि जो माइनॉरिटी है आप उसको कह रहे हैं कि आपकी कंट्री नहीं. अगर इस तरह से देखा जाए तो फिर तो हर कंट्री जो है उसके अंदर इस तरह के कम्युनिटीज होते हैं, उनमें आपस में वो कॉन्फ्लिक्ट में ही लगे पड़े रहेंगे. तो दिस वाज द थिंकिंग ऑफ सिन्हला कम्युनिटी. एंड मोर ओवर व्हाट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि द गवर्नमेंट वाज ऑल्सो supporting this thought of Sinhala community. वहाँ पर majoritarianism को लाया गया. As you have read all these developments of Sri Lanka in your 10th standard when federalism, under the chapter federalism. तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, जो चीज़ें हैं उसको हम लोग एक बार समझ लेंगे कि जो सिन्हलास थे उनकी जो इम्पोर्टेंस थी, उनको जो प्रायोरिटी देने की चीज़ थी, दैट वाज डन बाय द गवर्नमेंट. 1956 में एक एक्ट बनाया गया श्रीलंका में, और उस एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि जो भी सिन्हला बोलने वाले लोग थे, द पीपल हु स्पीक सिन्हला, दे वर गिवन प्रायोरिटी in admission to the educational institute, they were given priority in the government jobs also. तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसको वी कॉल इट मेजॉरिटेरियनिज्म, कि जो मेजॉरिटी में है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम उसके लिए सब कुछ रख रहे हैं, उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं. द मेजॉरिटी ग्रुप इज द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. जो कि अगर इफ वी कंपेयर दिस सिचुएशन विथ आवर कंट्री, what we find in our country, the group which is downtrodden, that is given priority by the government because they need the help of the government in order to move forward, है ना. वो downtrodden जो हमारी सोसाइटी की कम्युनिटीज हैं, लाइक दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, जिनको की बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उनको आगे करने के लिए उनको व्हाट इज़ रिक्वायर्ड कि उन्हें कुछ हेल्प दी जाए, उन्हें प्रायोरिटी दी जाए. तो ये पॉजिटिव होता है, दिस इज पॉजिटिव. बट श्रीलंका में जो गवर्नमेंट ने किया, दैट वाज हाईली ऑब्जेक्शनेबल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी के टोटली अगेंस्ट है कि आप एक मेजॉरिटी ग्रुप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, बिकॉज मेजॉरिटी इज नेवर, ये हमेशा याद रखने की चीज़ है कि मेजॉरिटी को कभी भी खतरा नहीं होता है. खतरा जब भी होता है तो वो माइनॉरिटी को ही होता है, बिकॉज दे आर लेस इन नंबर. सो देयर विल ऑलवेज बी डेंजर फॉर द माइनॉरिटी. किसी भी तरह का, किसी भी डेंजर की हम बात करें, इनके इंटरेस्ट को अंडरमाइन किया जाएगा. जब भी राइट्स होते हैं तो वो शिकार होते हैं, विक्टिम, मोस्टली जो विक्टिम होते हैं वो माइनॉरिटीज ही होते हैं. तो ये चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, अगर हम श्रीलंका की सिचुएशन को देखें तो वहाँ पर मेजॉरिटी को प्रायोरिटी दे करके डेमोक्रेसी के बिल्कुल भी अगेंस्ट काम किया गया. एंड व्हेन द गवर्नमेंट वर्क्स इन सच वे, देयर इज नेचुरल कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स तो आएगा ही फ्रॉम द साइड ऑफ द पीपल
व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका, ये जो तमिल कम्युनिटी है, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, they started feeling that this country does not belong to them, and they started their demand for सेपरेट स्टेट। वो ये नहीं कि हमको ऑटोनॉमी की बात हुई, लेकिन अल्टीमेटली वो तमिल इलम की बात करने लगे। और इन सब में जिसने इनको लीड किया, द लीडर वाज LTTE, Liberation Tigers of Tamil Ilam. It was the main organization which was there for the cause of Tamils. You can understand it from the very name, Liberation Tigers of Tamil Ilam. Tamil Ilam का मतलब क्या हुआ? तमिल के लिए एक सेपरेट कंट्री, ठीक है। तो ये जो हम सेपरेट कंट्री की बात कर रहे हैं, तमिल इलम की बात कर रहे हैं, वो बात करने वाले जो लोग हैं, दे आर तमिल्स, दे कंसिडर देम एज टाइगर्स, है ना। एंड दीज टाइगर्स आर टॉकिंग ऑफ लिबरेशन, है ना। उनको लिबरेशन चाहिए, उनको आज़ादी चाहिए। जो भी तमिल रीजन था, जो हमारा श्रीलंका है, उसका जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था ना, वहाँ पे तमिल पॉपुलेशन जो थी वो कंसंट्रेटेड थी। तो वो उस पोर्शन को हटा करके, मतलब पूरे श्रीलंका से अलग होना चाहते थे और एक अपनी तमिल इलम की उन्होंने डिमांड रखी। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ओके, तो यहाँ पर हम एक चीज ये समझ लें कि ये जो डिमांड हो रही थी कि तमिल इलम होना चाहिए, सेपरेट कंट्री होना चाहिए, दैट डिमांड वाज हाईली वायलेंट। जो सिविल वॉर की कंडीशन, पूरी सिविल वॉर की कंडीशन जो थी वो श्रीलंका के अंदर एग्जिस्ट करती थी। और इसमें ये जितने फुल फ्लेजेड वॉर का ये फॉर्म ले चुका था लेटर पीरियड में। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो हम ये देख रहे हैं कि इंडिया वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दिस मैटर, बिकॉज वहाँ जो लड़ाई हो रही थी, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उसमें तमिल्स इन्वॉल्व थे एंड दीज तमिल्स ओरिजिनली बिलोंग टू इंडिया। तो ऑफ कोर्स इसमें इंडिया का भी इन्वॉल्व होना नेचुरल हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट पे भी जो था, एक तरह से जो तमिल पीपल, यहाँ के जो तमिल्स थे, इंडियन तमिल्स, वो इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते थे कि द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द तमिल्स। श्रीलंका में जो तमिल्स के साथ हो रहा है, उस पे उसके अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। क्योंकि जो भी तमिल्स की प्रॉब्लम थी, उससे जो इंडिया में जो तमिल थे वो अफेक्टेड होते थे, और जब उन पे अफेक्ट होता था तो वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते थे कि गवर्नमेंट शुड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द तमिल्स। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एफर्ट्स किया कि किस तरह से वहाँ पर पीस को मेंटेन किया जाए, पीस को फिर से वहाँ पर लाया जाए। और इसके लिए कई बार नेगोशिएशंस भी हुए, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के साथ बातचीत हुई तमिल के मैटर पे। और 1987 में ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन। मतलब अभी तक बिफोर 1987 जो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट था वो डायरेक्ट नहीं था। 1987 में ये पहली बार हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किया अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी। एट दैट टाइम राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, एंड इसमें क्या होता है कि इंडिया ने एक अकॉर्ड साइन किया, एक ट्रीटी साइन की श्रीलंका के साथ। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी इंडिया सेंट ट्रूप्स टू स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड द तमिल्स। तो ये जो सिविल वॉर चल रहा था श्रीलंका के अंदर,
ठीक है। ये सिविल वॉर एक में कौन कौन इन्वॉल्व थे? सिविल वॉर जो था उसमें एक तरफ अगर हम देखें, सिविल वॉर में एक तरफ ये एलटीटीई इन्वॉल्व थी जो कि तमिल्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, और दूसरी तरफ जो इन्वॉल्व था वो था श्रीलंकन गवर्नमेंट। ये इन दोनों के बीच की कॉन्फ्लिक्ट थी, इन दोनों के बीच का ये सिविल वॉर जो था वो चल रहा था। अब इसमें इंडिया इन्वॉल्व हुआ, क्यों इन्वॉल्व हुआ? बिकॉज द तमिल्स बिलोंग्ड ओरिजिनली टू इंडिया। तो जो इंडिया में तमिल्स थे वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते थे कि गवर्नमेंट शुड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, तमिल पीपल इन श्रीलंका। तो इस तरह से 1987 में ये दिस इज इम्पॉर्टेंट कि क्या हुआ 1987 में। 1987 में एक अग्रीमेंट पे साइन करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर और श्रीलंका के प्रेसिडेंट, जिसमें ये कहा जाता है कि इंडिया जो है वो अपनी ट्रूप्स भेजेगी इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज रिलेशनशिप बिटवीन दीज तमिल्स एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट। इनके बीच का जो सिविल वॉर है उसको एंड करने के लिए ये अपना ट्रूप भेजेगी। 1987 में ये साइन हुआ ट्रीटी, और उससे ट्रीटी के अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो थी, IPKF हम उसको कहते हैं, वो वहाँ पर जाती है श्रीलंका में in order to maintain peace in that region. So this, according to this 1987 accord, IPKF, Indian Peacekeeping Force, reached Sri Lanka. The accord was between the Indian government and the Sri Lankan government. So of course, what you can understand, the logical conclusion is कि ये जो IPKF है that will fight with Sri Lankan government, क्योंकि जो अकॉर्ड हुआ है वो किसके साथ हुआ है? वो तो श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ हुआ है। तो जो ट्रूप्स हम भेजेंगे वो किसको सपोर्ट करेगी? श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी। और जब ट्रूप्स हमारी श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी तो किसको अपोज करेगी? LTTE को अपोज करेगी। और ये अकॉर्ड मतलब व्हाई इंडिया गॉट इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग्स? बिकॉज देयर वाज प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द तमिल्स इन श्रीलंका, बट व्हाट इज हैपनिंग? उल्टा हो रहा था, isn't it? हम इसलिए इन्वॉल्व हो रहे थे कि हम तमिल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और उसी दौरान उसी क्रम में इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द तमिल्स ये अकॉर्ड साइन हुआ इंडियन गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच। और इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका जाती है, और जब श्रीलंका जाती है तो वो श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ लड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ ही वो लड़ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ उसका अकॉर्ड हुआ, और इस तरह से वो LTTE के अगेंस्ट हो गई। तो ये जो माहौल हुआ दैट वाज डेट्रीमेंटल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। उसने LTTE को जो वो एक तरह से सपोर्ट था इंडिया का, वी कैन से कि हाँ इंडिया जो थी वो तमिल्स के कॉज को सपोर्ट कर रही थी। ऑन द वन हैंड यू आर सपोर्टिंग द LTTE, on the other hand you have sent the troops to fight against LTTE। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन इंडियन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी में हमको उस समय देखने को मिलता है, दैट प्रूव्ड डेट्रीमेंटल। कहीं ना कहीं उसका जो रिपरकशन है, उसका जो असर है वो हम जानते हैं। राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड, कहीं ना कहीं वो उससे कनेक्टेड है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से चली, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि 87 में जो ट्रूप्स हमारी गई श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ लड़ रही है, अल्टीमेटली श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड डिसलाइकिंग द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स ऑन द लैंड ऑफ श्रीलंका। दे स्टार्टेड थिंकिंग कि ये तो हमारे इंटरनल मैटर में क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, क्यों हमारे लैंड पे इंडियन ट्रूप्स है। तो ये सब कुछ काफ़ी जिसको हम कहेंगे कि कंफ्यूजिंग हो गया। एंड इन दिस सिचुएशन 1989 में जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी वो वापस आ गई विदाउट अटेनिंग इट्स एम। अपने एम को ये अचीव नहीं कर पाई,
और 1989 में ये वापस आ जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि श्रीलंका में जो प्रॉब्लम्स थी वो तो रही, उसके बाद अदर कुछ कंट्रीज थे लाइक जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होते हैं लाइक नॉर्वे, स्वीडन, इन आइसलैंड, इन्होंने दोनों के बीच में श्रीलंकन गवर्नमेंट और एलटीटी के बीच में पीस लाने में काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और इन द मीन टाइम क्या हुआ कि एलटीटी के अगेंस्ट भी बहुत एंगर आ गया था अमंग तमिल्स इन श्रीलंका, क्योंकि एलटीटी जो थी वो एकदम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी और काफ़ी तमिल्स पे फोर्स अप्लाई करती थी कि अपने में शामिल करने के लिए। तो इस तरह का जो माहौल था वहाँ पर वो एलटीटी के अगेंस्ट हो जा रहा था अमंग तमिल्स। और दूसरी चीज़ ये भी हुई कि जो इनका हेड था प्रभाकरन, उसको ख़त्म कर दिया गया, मतलब वो पकड़ा गया। तो जब से प्रभाकरन पकड़ा गया उसके बाद से एलटीटी जो थी वो कमज़ोर पड़ती गई और आज की डेट में हम यही कहेंगे इन एक्चुअली 2009 में ही एलटीटी जो है एलटीटीई वो ख़त्म हो चुकी है। और अब आज के डेट में वहाँ पे कंप्लीट पीस है, नॉट ओनली पीस, डेवलपमेंट के हिसाब से भी अगर हम देखें तो श्रीलंका हैज़ अचीव्ड अ लॉट। पीछे हमने वो डेटा देखा था जिसमें हमने देखा था कि हर मामले में श्रीलंका जो है वो इंडिया जैसे कंट्री से भी आगे है अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के डिफरेंट क्राइटेरिया को हम देखते हैं तो। सो वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास।